Hello friends, welcome to my Japanese language class. Today we are going to learn JLPT N3 grammar. Today's grammar is te kara de naito, te kara de nakereba. Both te kara de naito and te kara de nakereba both are same meaning, same sense, only two different conditions. To condition and ba condition. Okay. It takes verb te first. Kara de naito, te kara de naito, te kara de nakereba. It here also you can get that verb takes te first. Okay. यहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ पे verb te फॉर्म जाएगा. Where we use this grammar pattern, कहाँ पे हम इसी ग्रामर पैटर्न को यूज करते हैं, चलो देखते हैं. Te kara de naito and te kara de nakereba express conditions that must be met before another action can occur. They highlight that take certain action, for example X, must be completed first before another action, for example Y, can take place. It means if X does not complete, then Y cannot take place. These structures are essential for expressing conditions in Japanese and are commonly used in both spoken and written language. इसका मतलब है, the meaning of this thing is, if one action does not complete, another action cannot take place. इसका मतलब है, अगर एक एक्शन, एक काम अगर आप पूरे नहीं करते तो दूसरा काम भी नहीं हो सकता. जैसे हम बोलते हैं कभी कभी कि हम पेरेंट्स से बात नहीं करूंगी तो मैं बता नहीं पाऊंगी कि मुझे जाना है या नहीं जाना, इस तरह का. अगर तुम हाथ नहीं धोओगे तो खाना नहीं खा सकते, इस तरह का. ठीक है. एक काम अगर नहीं हुआ तो दूसरा काम आप नहीं कर सकते. ओके. हियर इट इज गिवन इन हिंदी, यू कैन रीड इट. te kara verb te form kara de naito. It emphasizes that the second action cannot occur unless the first one has been completed. इसका meaning है, the meaning of this is, if you do not complete the first action, you cannot do the second action. इसका मतलब है, अगर पहले वाला काम अगर आप कंप्लीट नहीं करते हो तो दूसरा काम, जो सेकंड में जो काम करना है वो नहीं कर सकते, ऐसा है. Look at the sentence. Sukudai wo oete kara de naito asobi ni ikemasen. You can't go out to play unless you finish homework. जब तक तुम अपना होमवर्क पूरा नहीं कर लेते, तुम खेलने के लिए बाहर नहीं जा सकते. इसका मतलब है, जो काम है फर्स्ट वर्क, सुकुदायो ओएते, कंप्लीट अ होमवर्क. होमवर्क अगर तुम कंप्लीट नहीं, इफ यू डू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, then you cannot go for play. This is second action. This is first action. Okay, so you must finish first action to carry on the second. Is that clear? इसका मतलब है, जब तक होमवर्क फिनिश नहीं करते, पूरा नहीं करते, तो खेलने के लिए नहीं जा सकते. मतलब खेलने को जाने का है दूसरे एक्शन, और पहला एक्शन क्या है, होमवर्क करना. ठीक है. तो जब तक पहला एक्शन कंप्लीट नहीं होता तो दूसरे एक्शन हम नहीं कर सकते. ते नाई तो कंडीशन. ओके. यहाँ पे नाकेरेबा भी
वही सेम जाएगा, मीनिंग और सेंस बोथ का सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट, खानेओ हाराते कारा दे नाई सोहिनवा उकेतोरे मासेन। You can't receive the product unless you pay for it. So what is the past action? Paying. Okhaneo harau koto. Okay. Paying the money. Second action is you receiving the product. If you do not complete this action, you cannot do this. If you do not pay the money, you can't get the product. It means to getting the product or receiving the product, before that you need to pay money. Okay. This is first action and this is second. If you do not pay, then you cannot receive. It means to receiving the product, before that you need to pay the money first. Okay. जब तक आप पहले भुगतान नहीं कर देते, आपको उत्पाद प्राप्त नहीं होता, नहीं हो सकता, सॉरी, नहीं हो सकता। मतलब जब तक आप पेमेंट नहीं करते तब तक आपको सामान नहीं मिल सकता। ठीक है, इसीलिए पहले फर्स्ट एक्शन कंप्लीट करो, देन सेकेंड एक्शन फॉलो टू दी फर्स्ट एक्शन। ठीक है, unten menkyo o shutoku shite kara de nai to kuruma o unten dekimasen. Which one is first action? Unten menkyo o shutoku shimasu. Second action, kuruma o unten shuru. Okay, driving the car. First action is getting a driving license. Second action is driving the car. If you do not have this, you can't drive a car. Okay, these things. You can't drive a car unless you obtain the driver's license. ठीक है, फर्स्ट एक्शन क्या है कि हमको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। सेकेंड एक्शन क्या है, हमको ड्राइविंग करना है कार को। जब तक हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, हम ड्राइविंग नहीं कर सकते, ऐसा है। ठीक, आमेगा यानदे कारा दे नाई तो सुप्पाचू देकिमासेन। फर्स्ट एक्शन इज आमेगा यानदे means stop the rain. Second action is go out. Okay, departing. So unless the rain is stopped, we can't depart. So रेन जब तक होता है हम नहीं जा सकते, जब रेन स्टॉप होगा, when the rain will stop, then only we can go. Okay, so first action is stop the rain and second action is depart. पहले एक्शन क्या है, स्टॉप द रेन, बंद होना, बारिश का बंद होना, और सेकेंड एक्शन है प्रस्थान करना, जाना। जब तक बारिश बंद नहीं होता तब तक हम जा नहीं सकते। तेओ आराते कारा दे नाई तो ताबेते वा इकेमासेन। फर्स्ट एक्शन इज तेओ आराइमास, सेकेंड एक्शन इज ताबेमास। Unless you wash your hands, you can't eat. फर्स्ट एक्शन क्या है, हाथ धोना। सेकेंड एक्शन क्या है, खाना खाना। जब तक हाथ नहीं धो लेते तब तक खा नहीं सकते, ऐसा है। एक काम अगर नहीं कर सकते तो एक काम भी नहीं होगा। ओके, हानाशिओ किचन तो कीते कारा दे नाई तो हेंजी वा देकिमासेन। हेंजी मीन्स रिप्लाई, रेस्पॉन्ड। हानाशिओ किचन तो कीते कारा दे नाई तो, if you do not listen properly, henji wa dekimasen, you can't respond it. Okay, so पहले first you listen properly, then you respond it. फर्स्ट एक्शन क्या है, हमको सुनना है क्या बोल रहे। सेकेंड एक्शन क्या है, जो सुने इसके रेस्पॉन्ड करना है। ठीक है, ते करा दे ना करेगा। हम पहले पढ़े, बिफोर वी जस्ट लर्न
ते करादे नाइतो. Te karade naito and te karade nakareba both are same meaning, same sense, and in same way it is using. एक ही जैसा इसका uses है both का. The second action cannot take place if the first action is not completed. अगर आपको पहला एक्शन पूरा नहीं किया है तो सेकेंड एक्शन जो आप नहीं कर सकते. कोनो सोरियो ते सिचे सिते करादे नाकरेबा मेन सेचिवो उकेरारे मासे. कोनो सोरुयो ते सिचु सिते करादे नाकरेबा मेन सेचिवो उकेरारे मासे. First action is सोरियो ते सिचु सिमास. Second action is men sechiwo ukerare masu. You can't take interview unless you submit the document. If you do not submit the document, then you cannot give your interview or you cannot attend the interview. Okay. So first action is submit the document. Second action is interview. So if you do not submit the documents, you can't take interview. जब तक डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करते तब तक इंटरव्यू नहीं दे सकते. जब तक आप पहले यह दस्तावेज जमा नहीं कर देते आप साक्षात्कार नहीं दे सकते. ठीक है. शिगोतो गा वाते करादे नाकरेबा खायरे मासे. फर्स्ट एक्शन इज कंप्लीट ऑफ जॉब. शिगोतो गा वारिमास. सेकंड एक्शन इज खायरिमास. सो इफ यू डू नॉट कंप्लीट योर वर्क यू कांट गो होम. You can't go home unless finish the work. So complete the first work, then you will do it. पहले आप काम कंप्लीट करो, इसके बाद घर जाओगे. ऐसे जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता आप घर नहीं जा सकते. यू कांट गो होम अनलेस फिनिश द वर्क. योयाको सिते करादे नाकेरेबा न्यूजो देकिमासेन. फर्स्ट एक्शन इज योयाको शिमास. रिजर्वेशन. Another is enter the place. You can't enter unless you make a reservation. Okay. जब तक आप आरक्षण नहीं कर लेते आप प्रवेश नहीं कर सकते. फर्स्ट एक्शन इज योयाकोशिमास. सेकेंड एक्शन इज एंटर न्यूजोशिमास. साचोनी कीते करादे नाकेरेबा कोताएरारे मासेन. फर्स्ट एक्शन इज साचोनी किकिमास. आस्क टू द प्रेसिडेंट. सेकेंड एक्शन इज आंसरिंग. पहला एक्शन क्या है? कंपनी का प्रेसिडेंट को पहले पूछना. दूसरा एक्शन क्या है? इसके बाद का एक्शन क्या है? एक्शन क्या है? आंसर देना. आई कांट आंसर अनलेस आई कंसल्ट विद द प्रेसिडेंट. जब तक मैं अध्यक्ष से परामर्श नहीं कर लेता मैं उत्तर नहीं दे सकती. ये काम अगर नहीं कर सकते तो ये भी नहीं कर सकते. इफ यू डू नॉट डू दिस वर्क यू ऑल्सो कांट डू दिस वन. इज दैट क्लियर? ओयानी सोदान सिते करादे नाकेरेबा किमेरारे मासेन. फर्स्ट एक्शन इज कंसल्ट विथ पेरेंट्स. सेकेंड एक्शन इज डिसीजन. Taking decision. This is first action. Consult with parents. Second action is taking decision to do any work. पहला एक्शन क्या है? पेरेंट्स के साथ बातचीत करना, कंसल्ट करना. सेकेंड एक्शन क्या है? डिसीजन लेना, करना है या नहीं करना. ऐसा आई कांट डिसाइड अनलेस डिस्कस इट विथ माई पेरेंट्स. मैं जब तक कोई निर्णय
मैं तब तक कोई निर्णय नहीं ले सकता जब तक मैं अपनी माता पिता से इस विषय पर चर्चा नहीं कर लेते, बात नहीं कर लेता। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट, बियोकीगा नावत्ते कारादे नकेरेबा उंदोवा देकिमासेन। फर्स्ट एक्शन इज बियोकीगा नावरिमास. Second action is undoshimasu. If you cannot get cure, you can't do exercise. You can't exercise until you get recovered from your illness. जब until you get recovered from your illness, you can't do any exercise. Okay? This is first action and this is second action. जब तक आप अपनी बीमारी से ठीक नहीं हो जाते तब तक आप व्यायाम नहीं कर सकते। पहले एक्शन क्या है? आपको क्योर होना है, अच्छा होना है डिजीज से। सेकेंड एक्शन, आप एक्सरसाइज करना है। जब तक ए नहीं हो सकता तब तक ए भी नहीं हो सकता। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करती हूँ सो दैट आप अच्छे से समझ जाओ, and I think that you will get understand properly. If there is any questions, you just put your questions in the message box and I will get back to you. Hope you like this video. Leave comments, ask questions and share your progress. And if you get knowledge from my videos, please share with your friends so that they also can learn from here. अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीखते हुए तो आप इसका अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख सके। और आपका कमेंट और कुछ क्वेश्चन हो तो आप मैसेज बॉक्स में दीजिए, मैं ट्राई करूंगी आंसर देने के लिए। फॉर रेगुलर जेएलपीटी क्लास contact in below mail ID. I will get back to you soon. अगर आपको रेगुलर जेएलपीटी क्लासेस पढ़ना है मुझसे तो इसी मेल आईडी में कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको रेस्पॉन्ड करूंगी। Thank you for watching. Let's meet in next class with a new topic. Till that time, stay healthy, stay safely. Sayonara. Goodbye.